Hello students, welcome to M and C Education. M and C Education में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत. In continuation of integrals, today we are going to do definite integrals, and this is not the first session of definite integral exactly. If we consider the last session in which we had discussed definite integral as the limit of a sum, there we had already and we have already discussed how and what definite integrals are and how we integrate in this definite integral section of the integral chapter 7 of class 12th. Now, in today's class, in continuation of the previous one, today we are going to do एरिया फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्चुअली हमने एरिया फंक्शन लास्ट क्लास में भी किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि जो हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो वो बेसिकली हमें क्या देता है, जो उसका आउटकम होता है वो क्या होता है. तो जब भी हम किसी फंक्शन को किसी इंटरवल में ओवर सम इंटरवल अगर हम इसको इंटीग्रेट कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो एरिया अंडर द कर्व मिलता है. और इसी के कारण हमें जो है वहाँ पर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड डिस्कवर हुआ कि हमने इनको इस वाले एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट दिए और फिर हमने उनका सम कर दिया. तो वहाँ पर हमने इसकी विड्थ h मानी थी. तो हमारे पास यहाँ पर जो है इस तरह से n डिविजन्स में हमने इनको बांटा. तो a से b तक जाने में कितना लग गया था, a प्लस एन एच जो है वो b के बराबर था. तो यहीं से हमने फिर एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए लिया था. तो वहाँ पर हमें जब हमने वो मेथड हमने किया था डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम मेथड जब हमने किया था तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा आउटकम आता है वो इस एरिया को देता है. ये वाला एरिया हमें निकल जाता है, एरिया अंडर द कर्व बिटवीन these two vertical lines a and b. x is equal to a and x is equal to b are the two vertical lines there. In between them and x axis, above x axis we get the area. It is not always the case. It depends upon how we integrate the function and with respect to what we are integrating the function. We have two variables. We can integrate it with respect to x as well as we can integrate the given function with respect to y. So we can and we will have to take the limit on x axis and y axis respectively in these two cases to get the required area. So definite integrals give us area function actually, right? There is no problem. And area function को अगर हम a x से डिनोट करा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर a to b और ये f x d x आ जाएगा. ठीक है, अगर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमारा एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है अगर, तो ठीक है, बात समझ में आ गई होगी. तो ये एरिया फंक्शन ही होता है हमारे पास जिसको कि आप ए एक्स लिख सकते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस. इट इज वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस एक्चुअली. इट स्टेट्स, let us suppose f be a continuous function on the closed interval ab. Fx is a continuous function over or on a closed interval. Closed interval is written in square bracket and it is closed interval ab. Is it okay? No problem with it. Fx is a continuous function on open closed interval ab if it is a continuous function, and let ax, again the area function we need to suppose it ax
let Ax be the area function. If Ax be the area function, then what will happen? It is A prime x, that is differentiation of Ax with respect to x, because x is the variable here. It should give us Fx for all, this is symbol for all x belonging to closed interval AB. Got it? No problem with it, I think. This is first fundamental principle, fundamental theorem on integral calculus. It states that Fx is a continuous function. If Fx is a continuous function over or on a closed interval AB, let Ax be the corresponding area function. For this Fx, it is corresponding area function, then A dash x is equal to Fx. Obviously integration and differentiation are reverse processes, so when we will differentiate an area function, we must get that function which will represent the curve, equation of the curve. Now we move on to second fundamental theorem of integral calculus. It states that let f be continuous function. Again it starts with Fx be a continuous function, and then it is again in on closed interval AB. Closed interval AB means A and B are included. Then if we suppose f to be the antiderivative of Fx, that means this capital F is integration of this Fx, antiderivative of Fx, then by this theorem we can and we will have A to B Fx dx is equal to square bracket Fx AB, which will be further evaluated as Fb minus Fa. Got it? Here whatever we are doing, ये हमने लास्ट सेशन में जब हम लिमिट ऑफ सम मेथड कर रहे थे तो उसमें हमने चेकिंग के लिए इसको यूज़ किया था. ठीक है, ये कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो तो लेट अस सपोज कि इसका इंटीग्रेशन ये है, मतलब आपको इंडेफिनेट तौर पे इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना है और फिर अपर लिमिट पे और फिर लोअर लिमिट पे इनको इवेलुएट करके इनका डिफरेंस निकाल लेना है. डिफरेंस नहीं निकालना है, बशर्ते इनको अपर लिमिट वाली वैल्यू में लोअर लिमिट वाली वैल्यू को माइनस करना है. डिफरेंस इज समहाउ डिफरेंट. वी नो what is the difference, how we define difference between two numbers or anything, right? Now we will see how we evaluate definite integral by substitution. Sometimes it is not that easy to evaluate the definite integral by merely integrating it in the way of what we do as in indefinite integral. In that case we need some of the questions or in other words we can say in most of the questions we will feel that some substitution is needed. So how will we proceed in that? It is very simple one. You need to do it in the same manner as we do in the case of method of substitution. In the case of indefinite integral we apply method of substitution. We will do the same thing, but here what we need to do extra, we need to change these two values. These are the lower limit and upper limit. Lower limit this one and upper limit this one. We need to change these two change limits accordingly, or
according to the new variables, according to the new variable, actually we will put something, right? So we need to change the lower limit and the upper limit according as the new variable, according as the new variable we need to change the limits. Obviously here and this dx will also change. If we are putting it in terms of t, then here it will be gt and here it will be dt. Then we need to change it for t, right? This is the thing. By solving some question, we will master over it and we will see how actually it works. So in the next segment we are going to see some solved questions. We will solve some questions. आज का पहला क्वेश्चन है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल. यहाँ पर 1 से 3 लिमिट दी हुई है. एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द फंक्शन डी एक्स. तो इसमें हमें क्या करना है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगाना है और इसको सॉल्व कर लेना है. मतलब अगर हम ये देखें तो इसका इंटीग्रेशन करना है. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको आई लेट आई इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं. आप बहुत अच्छी तरह से इनको समझ लीजिए धीरे धीरे. आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कराना है जो कि एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स देगा. ये कैसे आया, लेट अस डिस्कस इट. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3, ये हो जाएगा. एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 एंड देन वी डिवाइड द आउटकम बाय एन प्लस 1. यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है तो वी विल ऐड, यानी कि add 1 to it, that we will get 3. तो x cube is there and we will divide the outcome by the increased power, increased index, and again for 1 it is x, directly we can write. Now in the next step we will get the value of this function at 3, which is 3 cube by 3 plus 3, and then we will evaluate at its lower value, lower limit at 1. It is 1 cube by 3 plus 1, right? You will do the in the same manner, and it is 27 by 3 which will give us 9 plus 3, then minus it is 1 by 3 plus 1, it is 4 by 3, again it is 12 minus 4 by 3, and it is 36 minus 4 by 3, which will eventually give us 32 by 3, and which is the answer for this question. Evaluate the integral. तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम इसी तरह से जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है उसको लगाकर के हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं. ठीक है, तो वी विल फॉरगेट एवरीथिंग. वी विल सिंपली रिमेंबर कि हमें करना क्या है, इंटीग्रेट करना है इनडेफिनेट की तरह, एंड फिर अपर लिमिट पर इसकी वैल्यू इवेल्युएट करा लेनी है जो आउटकम आएगा, और फिर लोअर लिमिट पर, और फिर माइनस करा देना है अपर लिमिट वाली वैल्यू में लोअर लिमिट वाली वैल्यू को टू गेट द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल. यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसको जब आप इंटीग्रेट करना चाहेंगे इंडेफिनेट वाइज तो भी आपको यहाँ पर एक ज़रूरत महसूस होगी सब्स्टिट्यूशन की. आप यहाँ पर बिना सब्स्टिट्यूशन के करना चाहेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो एक्चुअली हो भी ना पाए शायद. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कराना है इंडेफिनेट की तरह, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे. तो यहाँ पर क्या है कि लेट आई इज इक्वल टू हमने सपोज कर लिया 0 से पाई बाय 4 है, फिर यहाँ पर साइन क्यूब 2t है, कॉस 2t है, dt है. ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट क्या करेंगे, तो हम साइन 2t पुट करेंगे. ऑब्वियसली हमने सबने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं साइन 2t को कुछ और u पुट कर लेंगे या x पुट कर सकते हैं हम. तो यहाँ पर u मैंने पुट किया है. ठीक है, फिर दूसरा काम ये है कि हमें dt की वैल्यू के लिए दोनों साइड
डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यही है वो जो लास्ट सेक्शन, जो हमारे फोर्थ आज का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव था करने का, कि जिसमें हमें ये देखना था कि इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वो हम देख रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। एंड वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, बताया था कि ये लिमिट्स चेंज करना ज़रूरी है, तो हाउ वी डू इट। एंड उससे भी पहले हम इस dt को कैसे चेंज करते हैं वो भी देखने की ज़रूरत है। तो sin 2t है, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2t, फिर इंटू 2dt आ जाएगा, ठीक है, जो कि du के बराबर हो जाएगा। ये क्या किया हमने, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करा दिया। कोई भी थर्ड वेरिएबल ले लीजिए, उसके अबाउट करा सकते हैं, और फिर जो अपॉन में आएगा दोनों साइड वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मान रखिए आपने x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कराया, तो आपको sin 2t का क्या मिलेगा, cos 2t मिलेगा, इंटू 2, फिर dt बाई dx मिल जाएगा, और u को जब आप x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो du बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी dx अपॉन में है, यहाँ पर भी dx अपॉन में है, तो दोनों जगह से कैंसिल करा करके यू कैन ऑब्टेन द सेम रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रिजल्ट ऑब्टेन किया है वो है cos 2t इंटू 2dt, ठीक है, वो du के बराबर है, ठीक बात है। यहाँ पर आपके पास cos 2t भी है संजोग से, dt भी है, तो लेकिन 2 नहीं है, तो इस 2 को आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो आप यहाँ पर cos 2t इंटू dt ही की वैल्यू निकालिए, जो कि आपको du बाय 2 के बराबर होगा, ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयरफॉर यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये जो sin 2t है उसकी जगह पे u लिखा तो u क्यूब हो जाएगा क्योंकि उस पर पावर डला हुआ है, और फिर अभी du बाय 2 हमने निकाला, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये 0 और पाई बाय 4 अभी हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये t के हिसाब से बने हैं, पर हमने तो वेरिएबल चेंज कर दिया u पे, तो हमें जो है इनको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लिखेंगे एज t टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट्स चेंज कैसे कर रहे हैं बहुत अच्छे से समझिए। तो एज लिखा है, t टेंस टू 0 लिखा है, तो यहाँ पर t 0 डालिए, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 साइन 0 हो जाएगा। तो u की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आई, 0 ना, तो 0 ही आ जाएगा। तो एज t टेंस टू 0 u टेंस टू 0। अब हम अपर लिमिट पे जाते हैं जो कि पाई बाय 4 दिया हुआ है, यू कैन सी हेयर। तो एज t टेंस टू पाई बाय 4, तो u टेंस टू, तो u यहाँ पर कैसे क्या करना है, t में डाल देना है पाई बाय 4, तो 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, तो u इज टेंडिंग टू 1। समझ में आ गई बात कैसे लिमिट चेंज हुआ। तो 0 की जगह पे तो 0 ही आया हमारा, जबकि पाई बाय 4 की जगह पे 1 आया है, तो हम पाई बाय 4 जहाँ पर था जो अपर लिमिट है वो हमारा 1 हो गया, ठीक है बात। फिर बीइंग अ कांस्टेंट दिस 2 कैन बी केप्ट आउट ऑफ द इंटीग्रल एंड वी विल डू द सेम थिंग, मतलब हम इस 2 को बाहर निकाल देंगे, पर ये डिनोमिनेटर में ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद u क्यूब है, उसका इंटीग्रेशन होता है u पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, 0 है 1 है। अपर लिमिट पे पहले हम वैल्यू इवेल्युएट कराएंगे, उससे पहले एक आप काम कर सकते हैं कि इस 4 को भी 2 के साथ लगा दीजिए, जो कि 8 हो गया, जो कि मैंने किया। अब u पावर 4 है तो यानी कि 1 पावर 4 हो जाएगा, फिर 0 पावर 4 हो जाएगा, इस तरह से 1 माइनस 0 या सिंपली 1 हो गया। एज ए रिजल्ट द फाइनल आंसर विल बी 1 बाय 8, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। और आपने अभी ये भी समझ लिया कि कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर ये क्या हुआ कि डेफिनेट इंटीग्रल है एज बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखने के लिए कि ये क्या है, आपको ये याद रहे इसलिए, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेट इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन में हम एग्जैक्टली ऐसे ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, 1 से 2 है, 1 बाय एक्स है, माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल 2x dx है, ठीक है। यहाँ पर भी वी विल अप्लाई दैट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन
टू इंटीग्रेट इट इंडेफिनिट वे, तो हमें जो है यहाँ पर क्या करना है, देखिए ये वही काम है, लेट कराएंगे ए आई इज इक्वल टू 1 to 2 1 by x माइनस 1 by 2x स्क्वायर है, e 2x है, dx है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पुट करना है इस 2x को t, क्योंकि ये जो है किस फॉर्म का बन सकता है, आपने इंडेफिनेट में एक फॉर्म पढ़ा था, वो था कि अगर आपके पास ई यू एफ यू प्लस एफ डैश यू डी यू दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंडेफिनेट के तरीके से ई यू इंटू एफ यू प्लस सी विल बी द आंसर। समझ गए? तो यही चीज़ यहाँ पर लगाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कोई बड़ा सा फंक्शन दिया होता है, तो वी ट्राई टू रिड्यूस इट टू दैट फॉर्म सो दैट वी कैन इजीली गेट द इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमें पुट करना है पहले किसको, 2x इज इक्वल टू टी, ठीक है। तो उसके साथ में ही हम लिख सकते हैं कि एज x टेंस टू 1 जो लोअर लिमिट है, तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है। फिर एज x टेंस टू 2, तो t टेंस टू 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 हो गया। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट था कि हमें dx की वैल्यू निकालने के लिए इनको दोनों साइड किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराना है, तो ये 2dx हो जाएगा और ये सिंपली dt आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिर्फ dx ही दिया हुआ है, तो हमें 2 को भी एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो 2 को भी एडजस्ट कर देते हैं, वो हो जाएगा dt बाय 2। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल टू, अब देखिए क्या क्या हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, हमने यहाँ पर लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। फिर यहाँ पर x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ x है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा t बाई 2, राइट। तो अगर हम यहाँ पर t बाई 2 लिखेंगे माइनस फिर यहाँ पर 1 बाय 2 इंटू एक्स की जगह पे t बाई 2 और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है, और साथ में e t और dt, ठीक है, बाय 2 भी लिखना है, तो उस बाय 2 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये 1 बाय 2 तो बाहर है ही, ये कहाँ से आया था, ये dx की वैल्यू से, और फिर हमारे पास यहाँ पर जो है ये 2 है, ये 4 है, ये 2 बाई टी है, माइनस यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर बाय 4 हो गया है, तो यहाँ पर टी 2 बाई टी स्क्वायर ही रहेगा, ओके, क्योंकि ये 2 कैंसिल कर देगा उस 4 को 2 टाइम्स में, और ये ई टी डी टी आ गया। अब जिस फॉर्म की हम बात कर रहे थे, ये वो फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं और उससे को इससे कैंसिल करा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये 2 से 4 है, 1 बाय टी है माइनस 1 बाय टी स्क्वायर है, ई टी है डी टी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर ई यू यानी कि ई टी आ जाएगा, एफ यू यानी कि 1 बाई टी आ जाएगा, क्योंकि एफ टी 1 बाई टी, एफ टी जो है ये है और एफ डैश टी ये है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई टी 1 बाई टी आ जाएगा। और यहाँ पर हमें इसको लिमिट भी लगानी है 2 से 4 के लिए, और इस तरह से ये हो जाएगा। जब हम 4 यहाँ पर लगाएंगे t की जगह पे, तो यहाँ भी 4 लगाएंगे और यहाँ भी 4 लगाएंगे, तो एक्सपोनेंशियल 4 बाय 4, माइनस जब 2 लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल 2 बाय 2 लगाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना, तो वी कैन डू इट। एक्सपोनेंशियल 2 बाय 2 कॉमन ले लीजिए एंड यू विल लेफ्ट विद एक्सपोनेंशियल 2 बाय 2 एंड माइनस 1, ठीक है, समझ में आया? ये सिंपल ब्रैकेट वी कैन यूज बिकॉज देयर इज नो अदर ब्रैकेट प्रेजेंट देयर, सो वी कैन यूज द सिंपल पैरेंथेसिस देयर, नो प्रॉब्लम विद इट।
यहाँ पर कैसे हुआ, ई स्क्वायर से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 2, अगर चाहें तो आप ई स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं और ये फिर आपका ई स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली माजरा क्या है जब हम सब्स्टिट्यूशन लगाकर किसी फंक्शन को किसी डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। तो उसमें बस मेन बात यह है कि आपको बाकी सारा जैसे भी इनडेफिनेट केस में हम करते थे वही सारा करना है, लेकिन हमें साथ में लिमिट्स भी चेंज करने हैं, लोअर लिमिट को भी और अपर लिमिट को भी अकॉर्डिंग एज द न्यू वेरिएबल चेंज करके ले आना है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए। आज अगर एनसीईआरटी वाइज देखें तो हमने 2 एक्सरसाइजेस कवर कर लिए, 7.9 और 7.10, आप ये दोनों ही कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास, वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी देयर। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।